Very good evening to all of you, beta. Today we are going to start with hydrocarbon. Initial part we have done in GOC. If you remember, beta, carbon has how much? Atomic number 6. So 2, comma 4. How many bond it will form? 4. 4 single, 1 double and 1 triple. Beta, if all 4 are single, it will be alkane. This will be alkene and this will be alkyne. So this chapter is divided into 4 parts. Alkane, alkene, alkyne and aromatic. Then oxygen atomic number is 6. So it will form how many bond? 2 bond. 2 single or 1 double. Hydrogen atomic number kitna hai? 1. So it will form 1 bond. Whenever there is one carbon, what we'll call beta meth. 2 means eth. 3 means prop. 4 means but. 5 means pent. 6 means hex. 7 means sept or hept. 8 means oct. 9 means non. 10 means dec. Then beta we have done this classification. If you remember beta, hydrocarbon are classified into what beta? Open chain and closed chain. So today we are going to do open chain. Open chain में saturated. ये carbon can form how many bonds? 4 bonds. If all 4 are single, then it is saturated. And if all 4 are single, then it is alkane. बेटा अगर ये डबल होगा, चिन्ह में बेटा अगर डबल होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अल्कीन. ठीक है. और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अल्काइन. ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग अनसैचुरेटेड बोलते हैं. सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? जब कार्बन के चारों बॉन्ड में ऑल द 4 बॉन्ड्स ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. ओके. व्हेन व्हाट इज अनसैचुरेटेड? जब चारों बॉन्ड सिंगल नहीं होगा, या तो डबल होगा या तो ट्रिपल, तो उसको अल्की. डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन एंड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अल्केन. अल्केन बेटा, वन बाय वन विल स्टार्ट बेटा. अल्केन इज व्हाट बेटा? सैचुरेटेड. तो हाउ टू डिफाइन अल्केन? उल्टा जाने का. अल्केन आर सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. व्हाट इज अनदर नेम फॉर अल्केन्स? दे विल आस्क. द पैराफिन्स. पैराफिन्स का मतलब होता है, पैरा मतलब लो, एफिन्स मतलब लो एफिनिटी, लो रिएक्टिविटी. फंक्शनल ग्रुप क्या होगा बेटा? ऑल 4 आर सिंगल बॉन्ड. व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? CnH2n+2. n क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन. रेया इफ आई टेक n इज इक्वल टू 1, व्हाट आई पुट? जहां पे भी n है वहां पे 1 डालो बेटा. क्या मिलेगा? CH4. Are you getting it, dear? Yes, sir. Okay. So we write CnH4. So this is structural formula. Clear? This is structure. And what will be the name of the compound? Methane. What is the name? One carbon means देगा methane. If चिन्मय if n is equal to 2 तो क्या डालेगा तू? बोल बेटा. ये फॉर्मूला क्या है? बोल बेटा. CnH2n+2 है कि नहीं? बोल. चिन्मय, आर यू देयर? हेलो. अरे राजा आहे की नाही? चिन्मय. क्या यार. चलो. If you put n is equal to 2, what you will get beta? 2 into 2 plus 2. So what you will get? C2H6. तो हाउ टू मेक C2H6? पहले बेटा क्या करने का? 2 कार्बन बनाने का सिंगल. हर एक कार्बन पे 4 बॉन्ड होना चाहिए. एंड पुट HHHHHH. आर यू गेटिंग इट? तो 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. 4 4 इथेन. 2 कार्बन मीन्स इथेन. तो आपको ऐसा नजर आएगा इथेन. इसको शॉर्टकट में हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा? CH3. ये CH3 और ये CH3 ऐसे. या C2H5H भी लिख सकते हैं. Now, Rhea, if I take n is equal to 3, what I'll get? N is equal to 3. So I'll put C3H8. CnH2n plus 2. So n के जगह पे 3 डाल. So you get 2 into 3 plus 2. So you get C3H8. So how will you draw beta? First you have to draw 3 single. चिन्मय आवाज आ रहा है क्या? Everywhere there will be what beta? HHHHHHHH. So this is your propane. अच्छा बेटा, अभी ना वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग कॉल्ड एज बॉन्ड लाइन. देखो ये प्रोपेन हो गया बेटा. शॉर्टकट में इसको कैसे लिखेंगे बेटा? CH3 CH2 CH3. छत्री छट्टू छत्री. आर यू गेटिंग इट? Now, Riya, we are going to study bond line. Bond line will start from 3 carbon. So when I draw this, 3 carbon are there. So 3 points. So this is what beta bond line structure for propane. Right beta? What does this mean beta? This is carbon, this is carbon, this is carbon. Here there are 3H, here there are 2H, and here there are 3H. Clear? So this is your bond line structure. Look beta, propane. Now for n is, acha, first I'm going to teach you continuous. What do you mean by continuous? Anything which I can write without lifting my hand is known as continuous. So this is continuous. देखो ये भी continuous. आप बोले did I lifted the pen or repeated the path? No. This is also continuous. This is also continuous. This is also continuous. But if I draw this way, then what it is beta? Rhea, is this continuous or discontinuous? Hello Rhea.
Yes, sir. It is continuous, the one which I've written in blue. I lifted my hand, na beta. No, it's discontinuous. Yeah. Discontinuous. चिन्मय, आवाज आ रहा है क्या? क्या मालूम है कौन? जोया भी आ नहीं रही है. जोया कहाँ चली गई? It's probably because we have a test tomorrow also. So she's Tomorrow which maybe test you studying have? language. Language, what man? Language, ठीक है बेटा. Anyways. Okay, if I take n is equal to 4, what I'll get beta? C4H10 or not? Tell me. Now beta, in C4H10, how I can draw C4H10? I can draw in this manner or not? 1, 2, 3, 4. And I can draw this also. So this is branch beta. This is straight and this is what? Branch. So if I can draw it this way beta. Look, this is straight beta. So this is सीधा है, इसको n butane बोलेंगे. What we'll call it as? N butane. इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बेटा? रेया 1 2 3 4 गॉट इट. Yes. नाउ बेटा आई कैन ड्रॉ दिस ऑल्सो नो और नॉट. टेल मी बेटा. लुक ब्यूटेन है एक, तो ऐसा सीधा बना बेटा एन ब्यूटेन. और अभी ये देख ऐसा एक नीचे बना है बेटा, दिखाई दे रहा है. इन बोथ दिस स्ट्रक्चर बेटा व्हाट इज कॉमन इफ यू सी बोथ दिस स्ट्रक्चर? देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट. C4H10 है, यहाँ पे भी C4H10 है कि नहीं? इसको स्ट्रेट था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं? कंडेंस्ड फॉर्म दिस इज CH3 CH CH3 CH3. कैन यू सी कंडेंस्ड फॉर्म? What will be the bond line for this, Rhea? Tell me. This will be like this or not? 1, 2, 3, 4. For this, it will be what? 1, 2, 3, and one branch. Yeah, these two Yeah. have same molecular formula, but structural formula is different. So we call them as isomers of each other. Iso means equal, mer means part. So in butane, how many isomer are possible, beta? Two isomer. Okay, right? So what is isomer, beta? Compounds having same molecular formula but different structural formula are called isomer of each other, and the phenomena is known as isomerism. This is known as chain isomerism. Which isomer? Chain. Chain isomer. Rhea, are you there, beta? Yes, sir. Okay. Then, if there is a formula to find chain isomer, beta, it is 2 raised to n minus 3. N minus 3 plus 1. N minus 3 or n minus 4 it is. Uh-oh. Uh-oh. Oof. Wait, beta. N minus 4 बेटा, या n minus 4 plus 1. चेन आइसोमर ढूंढने का. चिन्ह में आवाज आ रही है क्या बेटा? हेलो. हाँ सर। अरे यार, तेरा आवाज ही नहीं आ रहा था. तो n minus 4 कर रहे गए बेटा. रेया, इफ आई हैव गिवन 5 कार्बन 4 कार्बन, तो 4 minus 4 इज हाउ मच बेटा? 0. Plus 1. So 2 raised to 0 is 1. So 1 plus 1. So for butane beta, how many isomer I'll get? 2. Suppose if I 2. want to take pentane. पेंटेन. चिन्मय बेटा, पेंटेन के लिए क्या फॉर्मूला लेगा बेटा? C5H2. तो C5H12 हो जाएगा. ठीक है. अब इसके कितने आइसोमर बनेंगे बेटा? 2 रेस टू n माइनस 4 प्लस 1. सो 2 रेस टू 5 माइनस 4 प्लस 1. तो कितना आइसोमर बनेगा बोल? 3 आइसोमर बनेंगे. Rhea, have you understood this trick? Look beta, one is सीधा n pentane. Can you see this? Then Yes, sir. one branch. Then there is how many branch? Two branches. In all these three structure, what is common beta? If you see, this molecular formula is same, C5H12 only. Okay, this is n-pentane, this is isopentane, and this is neopentane. So how many isomer? You have to remember this formula. You write it beta. For what is the formula for isomer, chain isomer? N minus 4 plus 1. Where n is number of carbon. Write it. लिख ले बेटा, n is number of carbon. ये किसका फॉर्मूला है बोलो बेटा? चेन आइसोमर. राइट दिस. सो इन एग्जाम इफ आई गिव यू दिस 6 कार्बन होगा तो क्या करेगी बोल?
कितने बनेंगे बोल बेटा? 5. ऐसा एमसीक्यू आएगा बेटा, ठीक है। हैव यू रिटर्न? Yes. व्हाट विल बी द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर? एन पेंटेन, पेंटेन सीधा होगा तो कैसे बनाएंगे बेटा? 1 2 3 4 5। आई आइसोपेंटेन में 1 2 3 4 एंड वन ब्रांच, कैन यू सी दिस? एंड नियोपेंटेन में कैसे बनाएंगे बेटा? 1 2 3 4 एंड 5। गॉट इट? ये बॉन्ड लाइन बना दे बेटा बाजू Yes. में, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। बना दिया बेटा। Yes. जिनमें बेटा समझ में आ रहा है ना? ये मैंने सब मतलब ये तेरे को हाँ बेसिक बता रहा सर। हूँ, ये हम लोग ने जीओसी में भी किया था। अब बेटा वो अल्केन का भी प्रिपरेशन करेंगे बेटा, चलो अल्केन हाइड्रोकार्बन। तो बेटा अल्केन, वी आर स्टार्टिंग हाइड्रोकार्बन, अल्केन आर व्हाट बेटा? चलो, इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन वाला कंपाउंड, इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं बेटा। कंपाउंड विच कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। उसमें भी बेटा क्लासिफिकेशन हम लोग ने किया था, याद आ रहा है? ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन में भी बेटा सैचुरेटेड में सब सिंगल, हम लोग आज सैचुरेटेड वाला करें। डबल मतलब अल्कीन, ट्रिपल मतलब देख, अल्केन अल्कीन अल्काइन। वी आर डूइंग अल्केन्स। अल्केन में ऑल फोर आर सिंगल बॉन्ड्स विच हाइब्रिडाइजेशन sp3। डबल होता है तो sp2, ट्रिपल होगा तो sp, राइट? अल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद फॉर्मूला CnH2n+2। ओके, देन बेटा पैराफिन्स, दे आर नोन एज पैराफिन्स। पैराफिन मीन्स व्हाट बेटा? लेस एफिनिटी, लेस reactive. Now we are going to start with the preparation. The first preparation is preparation from alkene. Beta, this is carbon carbon double bond. अभी बेटा डबल बॉन्ड में आई कैन ऐड हाइड्रोजन और नॉट, व्हाट विल हैपन बेटा? व्हेनेवर डबल बॉन्ड इज देयर, इफ यू ऐड हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, एक इधर, इट विल बिकम अल्केन और नॉट? टेल मी, राइट? तो चलो बेटा ये वाला यहाँ पे देखो, मैंने भी आपको नोट्स दिया है, कीप दैट इन फ्रंट ऑफ यू रेया बेटा। Rhea, look, hydrogen. This is alkene or not double bond. I am adding hydrogen. So one. So what is happening here, beta? One hydrogen is going here, and one is going here. Can you see it has become alkane or not? Tell me. Yes, sir. अच्छा ये स्पेलिंग रॉन्ग है, राइने नहीं है, राने है। राने कर दे बेटा, राने निकल। इट इज अ कैटलिस्ट। प्लीज बेटा, दिस वेरेवर दिस इज राइना, यू मेक इट राने। राने Yes, sir. राने निकल हो गया वो, राने। राने स्पेलिंग रॉन्ग, राने। ए तो व्हाट इज दिस बेटा? इथीन विल बिकम व्हाट? I'll take example beta, if I take ethene, so ethene will become what? Ethane, right? Clear? This reaction is known as Sebastian and Sanderson reaction. What is the name of this reaction? अरे यार चलना आना भाई। This ethene will become ethane, propene will become, चिन्मय बेटा प्रोपीन क्या बन जाएगा बोल? अरे डबल बॉन्ड है ना बेटा, एक एच इधर जाएगा, एक एच इधर जाएगा, तो प्रोपेन। करेक्शन कर दे बेटा, ये राने है बेटा, प्रोपेन, ठीक है? Rhea, now I can take alkyne also or not? Tell me, Rhea. Hello. Yes. So here it is a triple bond. तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला, और सब सिंगल हो जाएंगे। और यहाँ पे दो बार हाइड्रोजन लेंगे, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर, टोटल 4 हाइड्रोजन है कि नहीं बोलो? सो ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या कहते थे? इथाइन और एसिटलीन, एंड इट हैज बिकम व्हाट? इथेन। प्रोपाइन विल बिकम प्रोपेन। अंडरस्टूड चिन्मय? है कि चला गया? हाँ सर। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है भाई मेरे? हाँ सर, मैं हाइड्रोजन नेटवर्क ऐड इशू हो है। रहा है, नोट सामने रख, सब दिखेगा। डन हाँ। रिया बेटा? रिया, कैन आई Yes. प्रिपेयर मीथेन बाय दिस मेथड? नो ना? No. बिकॉज मीथेन में देयर शुड बी वन कार्बन, बट यहाँ पे मिनिमम कितना कार्बन है सब में? देख बेटा, टू। टू 2. दिख रहा है कि नहीं बेटा? राइट? तो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपेयर, सो दिस वाज आई एम एडिंग हाइड्रोजन, सो इट इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। व्हाट इट इज नोन एज? हाइड्रोजनेशन।
Now we are going to do by reduction of alkyl halide. Alkyl halide. Second method is reduction of alkyl halide. अल्काइन का देख बेटा क्या हो रहा था, देखिए 4 हाइड्रोजन एक इधर जाएगा, एक इधर जाए, अल्कीन बनेगा, फिर वापस हाइड्रोजन ऐड होगा तो अल्केन। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसा। Sebastian Sanderson, methane cannot be prepared by this method. Now by we are doing reduction of alkyl halide. Okay, reduction मतलब एडिशन, अल्काइल मतलब R और X मतलब हैलाइड। अच्छा, रिडक्शन के लिए मुझे रेड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, तो आई यूज रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट विल गिव मी 2 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन एक्स के साथ चला जाएगा बेटा, देख ये ब्रेक हो जाएगा, एक एच आर के साथ जाएगा तो अल्केन बन जाएगा, और एक एच यहाँ पे, सो यू गेट अल्केन एंड एच एक्स। विच रेड्यूसिंग एजेंट वी कैन यूज? हु विल गिव दिस नेसेंट हाइड्रोजन? either it will give you zinc copper couple in alcohol, or I can take beta sodium zinc and HCl, or zinc and acetic acid, or hydrogen and HI, or zinc and NOH. They all will give you hydrogen beta. Example, what is this example? Rhea methyl iodide, and I'm taking hydrogen. What will you get? Rhea, think. Rhea देखना, 2H था, एक CH3 के साथ गया तो क्या बन जाएगा? Yeah, so CH4 and HI. वेरी गुड। इफ आई टेक इथाइल ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा ये हीरो चिन्मय? Yes, sir. ये तो एक एच उसके पास जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? C2H6 बन जाएगा ना बेटा, इथेन। और एक HBr बनेगा कि हाँ नहीं, बोल। हाँ सर। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? अल्काइल आइडाइड में बेटा ना मिथाइल क्लोराइड में लेता, या मिथाइल ब्रोमाइड, या मिथाइल आइडाइड। तो हु इज मोर रिएक्टिव? आइडाइड इज मोर रिएक्टिव। व्हाई रेया? एज यू गो डाउन द पीरियोडिक टेबल साइज इंक्रीजेस और नॉट? टेल मी। Yes, sir. So the bond length is increasing. So here force of attraction is more. Here it is less. So this will break easily. Therefore they are given order of reactivity. Understood? Yes, sir. Chalo beta. So look at these are the example in my notes. Now keep my notes second page ready. So look, one H will go here, one H will go here. So I get RH. Who is the reducing agent? Zinc and HCl I can use, or zinc copper couple in alcohol. So look, I have given both the name, methyl chloride or chloromethane. What I'm going to get? Methane and HCl. Ethyl chloride, I'll get ethane and HCl. Right? Order of reactivity I given. Why this is reactive Ri? Bond length is bigger, reactivity increases, force of attraction between the electron decreases. Clear? Now we are going to go for the next method of preparation, and that is what, beta? Wurtz reaction. Which reaction? Wurtz reaction. Now in Wurtz reaction, what we take, beta? Look, alkyl halide and alkyl halide. How many alkyl halide have you taken, Rhea? 2. Can you see? Rx plus XR and sodium. Now what will happen, beta? I take triether. This one Na and one X and one Na and one X will go. So what will get, Rhea? अरे रेया बोलना बेटा। NaCl or I mean NaX, 2NaX. And हाँ. what will remain, beta? This R and this R. So alkane, higher alkane I'll get. Suppose I have taken example, methyl bromide, and so what I'll get now? Tell me, beta. Tell me, Rhea, क्या मिलेगा? How many NaBr I'll get? अरे रेया, 2 Na. Yeah, I was on mute. Sorry. 2 2 Na NaBr and and C2H6. yeah, CH3 C2H6. Right, beta? So I get double the number Yeah. of carbon. So here also मैं methane बना पाऊंगा क्या बेटा? No, ना? Now No. sometimes beta examiner will say that I have done I have used Rane nickel. I have done Wurtz reaction. Identify my original alkyl halide. They say identify original alkyl halide. So what you will do, beta, in this case? Break this equally, beta. ये जो alkane मिलेगा, and add one bromine to this and add one bromine to this. They will ask ulta also, beta. So look, if I add bromine to this, I'll get my original alkane or alkyl halide or not. Tell me, dear. Right? Okay. This method is only for अच्छा. समझ में आ गया बेटा ये Wurtz reaction? Hello. Look, Yes, beta. sir. I look into my notes. RX. So look, beta, this will react. So what will get? RR, higher alkane. देख चिन्मय बेटा, यहाँ पर देख बेटा, मिथाइल ब्रोमाइड लिया तो देख ये 2 NaBr बन जाएगा कि नहीं? और ये तेरा CH3 क्या बन जाएगा? C2H6. आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. ओके। चिन्मय बेटा, यहाँ पर मैंने क्या लिया? इथाइल ब्रोमाइड। तो ये रिएक्ट हो जाएगा। चिन्मय, आर यू देयर और नॉट?
हाँ यस सर। अरे कुछ बोल तो सही भाई। ये दो NaBr हो गया। यहाँ पे अभी कितना H था बोल बेटा? यहाँ पे कितना, दो कार्बन था, यहाँ पे दो कार्बन, तो चार कार्बन वाला मिलेगा, देख रहा है बेटा, ब्यूटेन मिलेगा। बराबर है? हाँ सर। ओके, अगर मैंने एग्जाम में तुझे पूछा रहता मुझे ब्यूटेन मिला वर्ड्स रिएक्शन से, तो इसका उल्टा क्या होगा बेटा? तो क्या करेगा? उल्टा पूछेगा तो रिएक्टेंट पूछेगा तो क्या करेगा? जो भी प्रोडक्ट होगा उसको इक्वली डिवाइड करने का, और इसको ब्रोमीन ऐड कर देने का, इसको भी ब्रोमीन ऐड कर देने का। देख, मिला के नहीं? सो हाँ मेनी सर। क्वेश्चंस विल कम बेस्ड ऑन दिस। इसमें भी देख, अभी एप्लीकेशन में तेरे को बताता हूँ। सपोज मैंने तेरे को ऐसा बोला, ये देख, हेक्सेन मेरे को मिला वर्ड्स रिएक्शन से, तो ओरिजिनल अल्काइल हैलाइड क्या होगा? क्या करेगा? इसको इक्वली डिवाइड करेगा कि नहीं? देख, और वहां पे हेलोजन ऐड कर दे। देखा, क्लोरीन ऐड कर दिया कि नहीं? मिल गया ना रिएक्टेंट? ठीक है कि नहीं? तो देख, ये रिएक्ट होके ये बन हाँ जाता है। सर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे बेटा। अभी विच अल्काइल हैलाइड गिव द फॉलोइंग अल्केन? एन ब्यूटेन बोला। रेया, हाउ विल यू डू दिस? हु विल गिव यू एन ब्यूटेन? रेया, हु विल गिव यू एन ब्यूटेन? विच Uh, वर्ड्स रिएक्शन आई हैव डन? तो यू ब्रेक इट इक्वली ना बेटा? yeah. So you'll take ethyl halide, right ना बेटा? Hmm. Who will give you this alkane 2,2 dimethyl butane? Why this is butane बेटा? 1 2 3 4 ब्यूटेन, टू पे मिथाइल, टू पे मिथाइल। अभी ये तेरे को वर्ड्स रिएक्शन में ये मिला है, तो ओरिजिनल कैसे ढूंढेगी बोल? अरे यार, ओरिजिनल के लिए क्या करेगी? इक्वली ब्रेक कर इसको, Yeah, so एंड यू पुट हेलोजन, सो यू गेट टू क्लोरो प्रोपेन और आइसोप्रोपाइल propyl, हैलाइड। yeah, yeah. ओके, विच अल्केन विल बी ऑब्टेन व्हेन नियोपेंटाइल क्लोराइड? नियोपेंटाइल मतलब ऐसा होता है, देख हीरो चिन्मय, नियोपेंटाइल मैंने ऐसा बोला, तो नियोपेंटाइल तो दो बार लेगा बेटा, फिर क्या करेगा? सोडियम ऐड करेगा, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देने का। देखा? तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टू पे मिथाइल, टू पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल, 2,2 5,5 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन मिलेगा। क्लियर है? अच्छा बेटा, अभी सपोज इफ आई टेक असिमेट्रिकल, दोनों अभी रेया व्हाट आई टेकन, मैंने दोनों सेम सेम ले रहा था ना अल्काइल हैलाइड। हेलो रेया, Yes, sir. अगर मैंने दो अलग अलग अल्काइल हैलाइड लिया तो क्या होगा बेटा? इफ आई टेक टू डिफरेंट अल्काइल हैलाइड, लुक बेटा, आई हैव टेकन हियर अल्काइल हैलाइड, हमने मिथाइल, एंड इफ आई टेक हियर इथाइल, देन व्हाट विल हैपन बेटा? आई विल गेट थ्री डिफरेंट प्रोडक्ट्स। हाउ मेनी प्रोडक्ट आई विल गेट बेटा? Three. थ्री। पहला क्या होगा? दिस विल रिएक्ट विद इटसेल्फ, सो आई विल गेट RR, देन दिस R डैश खुद के साथ रिएक्ट होगा, उसको कहते हैं सेल्फ कपलिंग। फिर क्या होगा? दिस R एंड दिस R, इसको कहते हैं क्रॉस कपलिंग। दिखाई दे रहा है? सेल्फ, सेल्फ एंड क्रॉस। अच्छा, तो बेटा यहाँ पे मैंने क्या लिया था बोल बेटा? व्हाट आई हैव टेकन यार? मिथाइल। सो मिथाइल मिथाइल क्या बन जाएगा? इथेन मिलेगा कि नहीं? हियर आई हैव टेकन इथाइल, इथाइल इथाइल विल बिकम व्हाट? ब्यूटेन और नॉट? टेल मी। Yes. So here beta, how many carbon are there? Two carbon, so it is even carbon or not? Tell me. Here also four carbon, so it is even or not? Acha, and whenever there is even carbon beta, self coupling is major product. Major product. Now here if I take cross coupling, then beta what I'll get? Methyl and this was ethyl. Join कर दोनों को, क्या मिलेगा? Rhea, if you join them, Propane. what you get? C3H8 or Propane. not? Propane. But propane is odd carbon. So odd carbon is minor. So this method is not preferred for odd carbon. It is preferred only for even. So this method is not suitable first for methane and not for odd carbon. Is this clear? Right? Yes. Yes. So this I have written here, beta. If you say methane cannot be prepared and it is only suitable for symmetrical. Okay? Only suitable for symmetrical and not, यहाँ पे लिख not for odd carbon, not for odd carbon ना, ड्रॉबैक है ना बेटा, not for odd carbon, ये लिख दे बेटा, डेट इज मत लिख, not for odd carbon। क्लियर है? सिमेट्रिकल बोला तो इवन होता है बेटा, ठीक है ना बेटा? हैव यू अंडरस्टूड दिस बेटा? राइट, now we go to the next part, that is Grignard reagent. What is Grignard reagent बेटा? I'll explain. देखो, इफ आई टेक अल्काइल हैलाइड, इसके अंदर मैं क्या डालूंगा बेटा? मैग्नीशियम।
in presence of dry ether. In presence of dry ether. Dry ether is a solvent. So magnesium will enter into between these two. So what I'm going to get? Alkyl magnesium halide. This compound is known as Grignard reagent. It was discovered by Victor Grignard. Grignard reagent. ठीक है. Why we use dry ether? Dry ether is a solvent. Dry मतलब ऐसा powder नहीं होता. It is a liquid which is free from moisture. So first step we prepared Grignard reagent. Okay. And second step, beta, suppose by mistake if you take water, Grignard reagent is known as organometallic compound. Why organometallic? Because this is organic part and this is metal. सपोज बेटा तूने इसके अंदर वाटर ले लिया, गलती से भी वाटर ले लिया, तो क्या हो जाएगा? नाउ टेल मी रेया, बिटवीन this water H plus is positive, OH is negative. In Grignard reagent, beta, magnesium is positive and this part is negative. So what will happen? Now look, this negative and this positive will react and what will get? RH. RH is what? Alkane. And what is remaining? This negative, this positive and this negative will react. So what will you get? Hydroxy magnesium halide. देख बेटा, ये हाइड्रोक्सी था, ये मैग्नीशियम एंड हैलाइड. तो हमको अल्केन मिला के नहीं. सो इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन. फर्स्ट स्टेप वी विल प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. सेकेंड स्टेप में इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यू हैव टू ऐड वाटर. सो यू गेट करस्पॉन्डिंग अल्केन. अंडरस्टूड? Rhea, have you understood this or not? Tell me. Yes, sir. So look, Rhea, what we have done, my next method, you see my notes, beta, page number 3. Alkyl halide, I am taking magnesium, I am adding in between. So I get alkyl magnesium halide. Magnesium is metal positive, this is negative. Alkyl magnesium halide is known as Grignard reagent. It is known as organometallic compound. Suppose if I take example, R के जगह पे मैंने CH3 डाला, तो what will be the name, Rhea? Methyl bromide, right? Now this magnesium will enter in between. So what I get? Methyl magnesium bromide. First step. Second step में what I do, beta? Tell me, Rhea, what we do, beta? In this, what we add? Water. Can you see I have added water to this? Yes. So this is negative and this is positive. So this will react and it will give you alkane. Now this is positive and this is negative. So you get hydroxy magnesium halide. We are not interested in this. We are mainly interested in this. So suppose if I take beta example, methyl bromide and magnesium in first step. So I get methyl magnesium bromide. In second step, methyl magnesium bromide, I make it react with water. So this is my positive and this is my negative. So this negative and this positive will give me what? Methane. And remaining I'll get hydroxy magnesium halide. Understood? See the reaction properly. Grignard reagent, we prepare this in two steps. First step, we prepare Grignard reagent. Second step, we add water to it. Okay? Yeah. चिन्मय, आर यू देयर? और चला गया बेटा तू, बार बार बाहर जा रहा है तू. हाँ सर. अरे बेटा, नोट्स है ना सामने, दिख रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना बेटा? कुछ हाँ. डाउट रहेगा तो पूछ. हाँ सर. Then we go to the next method. Suppose beta, I have taken this. Rhea beta, this is cyclohexyl, not benzene. 6 carbon are there or not? 1, 2, 3, 4, 5. Cyclohexane में से एक H गया और bromine डाला. Now where this magnesium will enter, Rhea, in between or not? Tell me. Yes. And dry ether, so cyclohexyl magnesium bromide. And now to this second step, if I add water, then what will happen? This part is negative and this is positive. So what I get? Cyclohexane. And remaining what I'll get, beta? Hydroxy magnesium bromide. Hydroxy magnesium bromide. Understood? Yes. Hello, right? So these are the method of preparation. Then beta, we prepare from carboxylic acid. Beta, this we have done in your 10th standard. Remember first method of preparation of alkane? Carboxylic acid is Rhea what? RCOOH. If I remove this H and I add here sodium, so I get sodium salt of carboxylic acid. Then we take soda lime. Remember beta? We take soda lime. Then what I'm going to get? This blue part, dekho beta. How many Na is here? Rhea, count. In this 2 Na or not? Tell me. 1 C. How many O? 1, 2 and 3. When it is CO3. What is remaining? This R and H is remaining. So I get alkane. So 1 carbon atom less वाला मिलेगा क्योंकि ये कार्बन बेटा इसमें चला गया कि नहीं बेटा. So now Rhea, tell me बेटा, 2 कार्बन वाले एसिड का नाम क्या होता था? एसिटिक एसिड. Do you remember बेटा?
In from this, I remove one H and I introduce what beta? Na. So I get what? Sodium acetate. Can you see this? I take soda lime. Now what will happen beta? This part will react. So what do you get? Na2CO3. बचा क्या बोल? What is remaining? This CH3 and this H. So I get methane or not? Here how many carbon were there? Two. But here it is how much carbon? One carbon. So this reaction is used to decrease the number of carbon atom. This reaction is used to decrease the number of Carbonate. carbon atom. If I take sodium propionate, अरे बहुत बड़ा हो गया. अरे हाँ. Here how many carbon are there? Rhea, tell me. C2H5 and 1, C3. So it is sodium propionate. So this part will react. Soda lime we take. So what is remaining? C2H5 और EH. तो C2H6 हुआ कि नहीं? यहाँ पे टोटल कितना कार्बन था? रहा 3 कार्बन. In here it is only 2 carbon. Because 1 carbon यहाँ पे चला गया कि नहीं? So this is used to decrease the number of carbon atom. Clear? Right? Yes. Now beta we are going to study the chemical properties. First is combustion. Combustion मतलब if I burn any hydrocarbon. Look beta, if I take any hydrocarbon CXHY, whenever I burn with oxygen, it will always give me carbon dioxide and water. How to balance this equation and heat is released? Rhea beta, here which number is there? Here there is X, so I'll write here X. Here what I have to write? Y by 2. Here I'll write beta half of oxygen on right hand side. Half of oxygen on right hand side. Now suppose if I take beta first example, methane. So what I'll get? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ये लिख देने का बेटा. रिया बेटा कितना एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पर बोलो. एक्स के जगह पे क्या है यहाँ पे? 1. तो यहाँ पे आई विल पुट 1. वाई का वैल्यू कितना है? 4, so हाँ 2. सो 2. अभी यहाँ पे वो कितना हो गया? 2 इंटू 2 2. सॉरी दिस इज 2 एंड दिस इज 2 सो 4. 4 का हाफ क्या होता है बोल बेटा? 2. सो लुक 2. हाफ ऑफ ऑक्सीजन ऑन द राइट हैंड साइड. क्लियर? सपोज इफ आई टेक हियर, इफ आई टेक हियर इथेन. इथेन नहीं, चलो बेटा हाँ इथेन ले लेते हैं. चलो C2H6. तो यहाँ पे क्या करती थी बोल बेटा? एक्स का वैल्यू कितना है? अरे बोलना रे यार, 2 ना. Yes, sir. हाँ. वाई इज हाउ मच? 6. हाँ तो यहाँ पे क्या लिखेगी? 3. how many हो? 4. here it is how much? 3. 4 plus 3 is 7. तो 7 by 2 हाफ ना बेटा? are you getting it? Yes, sir. so if I take butane, तो look I have written here 4. this was how much बेटा? y का value was 10. तो 10 by 2 5. how many हो here? 8. here how much are there? 5. तो कितना आ रहा था? 13. तो यहाँ पे देख 13 by 2 लिखा. अब समझा? अरे बोलना. Yes, sir. Yes. हाँ. दिस रिएक्शन इज हाइलो एक्सोथर्मिक. इसलिए बेटा अपने घर पे जो गैस आती है ना बेटा, वो दैट इज अल्केन. हम लोग खाना पकाते हैं जो गैस या तो सिलेंडर में होता है या पाइप फॉर्म में. बिल्डिंग में पाइप भी है. कहाँ कहाँ पे सिलेंडर होता है, राइट? एलपीजी. Now we are going to undergo reaction. We are going to study reaction of alkane. Alkanes will always undergo beta substitution reaction. So this we have done beta. All this is done. Decarboxylation we did. Directly beta. This combustion we did right now beta. Clear? Are we did this combustion beta. Now next reaction is what beta? Halogenation. Halogenation means, look, I take RH and I add chlorine to it. So what will happen? H will be replaced. What I'll get now? Tell me, Rhea. HNCl will react. So what I'll get? HCl. What else is remaining? Rhea, क्या बचा बोल? RCl. RCl. Right now, तो alkyl chloride. Okay. So methane, if I take, I'll get what? Methyl chloride and HCl. But this reaction will not stop here, बेटा. ये स्टॉप नहीं होगा बेटा. वाई? बिकॉज देखिए मिथाइल क्लोराइड था ना बेटा, वापस वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा. देखो मीथेन पे कितना एच है बेटा? टोटल काउंट करो 4H. हर एक स्टेप में एक एक एच गायब होगा बेटा.
पहला ये जाएगा तो यहाँ पे क्लोरीन आएगा, फिर ये जाएगा तो यहाँ पे क्लोरीन आएगा, फिर ये जाएगा तो यहाँ पे क्लोरीन आएगा, फिर ये जाएगा तो यहाँ पे क्लोरीन आएगा। तो देख बेटा, नाउ देख, वन मोर एच विल बी रिप्लेस्ड। लुक हियर, सो आई गेट डाइक्लोरोमीथेन। how many H are there? अभी और there are two more H ना रेया, तो one more Yes. H will be replaced. Can you see? I get chloroform या trichloromethane. One more H is there or not? Tell me Rhea. So I get Yes, sir. carbon tetrachloride, right? So this is not the best method. Why? Because मैं जब reaction में करता हूँ ना बेटा, look this I have given you the general reaction. Look, can you see HCl चला गया, ये देखो. And what is remaining बेटा? Alkyl chloride. मीथेन लेता तो बेटा क्या होता था, ये HCl बन जाता था और मिथाइल क्लोराइड। बट अच्छा, यहाँ पे ये भी पूछेगा, इट इज विच मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, दैट आई विल टीच यू व्हाट इट इज। बट बेटा कैन यू सी बेटा, इफ आई स्टार्ट विथ मीथेन, मीथेन में कितना एच है चिन्मय, देख बेटा 4 एच था ना, पहले में ये एच गया, दिखाई दे रहा है, फिर अभी और एक हाँ एच सर। जाएगा, तो देख 2 क्लोरीन हो गया। अब और एक एच जाएगा, तो देख 3 क्लोरीन, देखा यहाँ पे चला गया। अब और एक एच है तो और एक एच जाएगा। इसके सबका नाम ऊपर मैंने लिख दिया बेटा, ये देख रहा है नोट्स में, देखो मेरे। नॉट बेस्ट मेथड, क्यों बेटा, अगर मैं वेसल में करता था तो मुझे ये सब मिलता था अंदर, ये सब है इसके अंदर। तो लेकिन दिस इज नॉट ना, मेरे को तो इसमें इंटरेस्ट था, तो ये सब भी मेरे को, ये सब नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। और फ्री रेडिकल में कहना द नॉट द बेस्ट मेथड, व्हाई? बिकॉज अपने को यहाँ पे क्या मिलता है, वी गेट व्हाट, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सेपरेशन इज डिफिकल्ट। तो इसको रुकाने का एक तरीका है बेटा, व्हाट आई विल डू बेटा, अल्केन एक्सेस लेने का और क्लोरीन कम लेने का, तो दूसरे स्टेप में बेचारा क्लोरीन आएगा ही नहीं, ठीक है ना। So to stop reaction in first step, what we have to do, Rhea? We have to take alkane in excess and chlorine as a limiting agent. Clear? Hello, Rhea. Yes, sir. I'll now explain you the mechanism of this, beta. So it is a free radical substitution, beta. Now, ये देखो फ्री रेडिकल कैसे होता है मैं बताता हूँ। देखो ये मैकेनिज्म पूछते बेटा, मैंने जीओसी में बताया था बेटा, जब भी हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस होता है और ऊपर यूवी लाइट लिखा रहेगा, दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन यूवी लाइट, so it is a free radical mechanism. This mechanism is important. फर्स्ट बेटा देख, पहला मैंने क्या लिया था, देखो बेटा क्लोरीन, क्लोरीन में बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन देखो बेटा ऐसा ब्रेक हो जाएगा, यूवी लाइट होमोलिटिक फिशन होता है ना, फ्री रेडिकल बनेगा बेटा, क्लोरीन फ्री रेडिकल। सेकंड स्टेप में बेटा क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, नाउ दिस मीथेन के साथ हम लोग रिएक्ट कर रहे थे कि नहीं, तो देखिए मीथेन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो फर्स्ट स्टेप में बना इस पे अटैक करेगा, तो देख इसको मैं ऐसे मीथेन को लिख सकता हूं, तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अरे बेटा इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H का एक और Cl का एक, HCl बन जाएगा, एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल गो हियर, सो इट विल फॉर्म मिथाइल फ्री रेडिकल। आर यू गेटिंग इट? लुक हियर बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो देख मिथाइल फ्री रेडिकल और HCl बन जाएगा। क्लियर? देन बेटा दिस मिथाइल फ्री रेडिकल फर्दर क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं, बोलो बेटा। रिया, हियर देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स और नॉट, टेल मी। Yes, sir. वन विल गो हियर, सो मिथाइल विल कम, तो इन दोनों के बीच मिथाइल क्लोराइड बनेगा और ये इस पे चला जाएगा तो क्लोरीन फ्री रेडिकल आ जाएगा। ये देखो बेटा, क्लियर? हेलो, Yes, sir. या, तो ये भी चेन, तो अभी चेन को रुकाने का है, ये हु इज, कब रिएक्शन रुकेगा बेटा, व्हेन ऑल दिस फ्री रेडिकल विल डिसअपियर, दिस फ्री रेडिकल एंड दिस फ्री रेडिकल शुड डिसअपियर। तो ये दोनों डिसअपियर कैसे हो सकता है, या तो 2 क्लोरीन सामने सामने आएंगे तब, या 2 मिथाइल फ्री रेडिकल सामने आएंगे तो ऐसा ज्वाइंट हो जाएगा ना बेटा, दिख रहा है कि नहीं, या 1 मिथाइल फ्री रेडिकल एंड 1 क्लोरीन फ्री रेडिकल विल कम इन फ्रंट ऑफ इट ईच अदर। सो लुक बेटा, चेन टर्मिनेशन बोलते हैं। 3 केस है कि नहीं, देख मिथाइल और क्लोरीन सामने आएगा तो देख मिथाइल क्लोराइड, या फिर क्या होगा, क्लोरीन और क्लोरीन सामने आएगा तो देख फ्री रेडिकल गायब हो गया कि नहीं, या तो बेटा मिथाइल मिथाइल सामने आएगा तो यू गेट इथेन। You will say, sir, where is this mechanism? So look here. Look, I have given this mechanism in my notes. Hello, can you all see? Yes. Look, पहले देखिए फ्री रेडिकल बना, फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल किस पे अटैक करेगा, दिस वाज चेन इनिशिएशन, फिर ये मीथेन पे अटैक करेगा तो मिथाइल फ्री रेडिकल और HCl बनेगा, फिर मिथाइल फ्री रेडिकल बर्तन के अंदर हम लोग ने मीथेन और क्लोरीन लिया ना, तो वो क्लोरीन पे अटैक करेगा, दिख रहा है।
मिथाइल क्लोराइड बनेगा Cl। अभी चेन टर्मिनेशन में तीन पॉसिबिलिटी थी कि नहीं, मिथाइल और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल सामने आएगा, या क्लोरीन क्लोरीन विल कम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, और मिथाइल एंड दिस मिथाइल विल कम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। नाउ रेया, वी हैव स्टडीड बेटा लाइफ में इफ एनी प्राइमरी, कोई प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी बनेगा या टर्शरी, विच वन इज मोर स्टेबल? लाइफ में बेटा किसी को भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बनना हो, Primary. नहीं, टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो अगर कोई रिएक्शन है जिसमें प्राइमरी या सेकेंडरी बनना है तो पहले क्या बनेगा? सेकेंडरी। कोई रिएक्शन है जिसमें प्राइमरी और टर्शरी बन रहा है तो पहले क्या बनेगा? टर्शरी। ठीक है। अच्छा बेटा, नाउ आई एम डूइंग दिस रिएक्शन प्रोपेन का। नाउ प्रोपेन का बेटा आई एम टेकिंग क्लोरीन एंड यूवी लाइट। नाउ टेल मी बेटा, दिस क्लोरीन कुड हैव गॉन हियर और नॉट? टेल मी। तो यहाँ पे जाता तो ये कार्बन आगे जाके कितने कार्बन से अटैच है रे? हाउ मेनी कार्बन इट इज अटैच विद? दिस कार्बन। अरे दिस कार्बन इज Two. अटैच टू, नहीं, डायरेक्टली वन से है ना बेटा। अरे कार्बन Oh कैन yeah. फॉर्म फोर बॉन्ड ना, सो इट इज अटैच ओनली टू वन। ये आगे जाकर ये अलग सेट है। तो दिस इज प्राइमरी कार्बन, सो क्लोरीन विल गो हियर, सो आई विल गेट व्हाट बेटा? वन क्लोरोप्रोपेन। कैन यू सी? अच्छा, ये Yes, sir. क्लोरीन यहाँ पे भी जा सकता था कि नहीं? ये कार्बन आगे जाके कितने से अटैच है? दो से अटैच है कि नहीं, बोल? Yeah. तो विच वन इज मोर स्टेबल बेटा? इफ आई गेट अपॉर्चुनिटी इन टू बिकम प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, सो विच वन इज मोर स्टेबल? टर्शरी। Secondary. इसमें टर्शरी तो है ही नहीं, तो इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी, तो विच वन इज मोर Yeah. स्टेबल? तो देयरफॉर यहाँ पे मेजर Secondary. लिखा है हम लोगों ने, सेकेंडरी इज मेजर प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. Because this is the stability of free radical, tertiary, secondary, and primary. So first it will try to become what? Tertiary. It is more stable. I have written also. Look here. ए चिन्मय, अभी यहाँ पर देख, अगर मैंने आइसोब्यूटेन लिया रहता और क्लोरीन ऐड करता मैं, आइसोब्यूटेन लिया और क्लोरीन ऐड करता मैं, ए, ये क्लोरीन इस पे जा सकता था या तो इस पे जा सकता था। अरे ये आगे जाके एक सेट, पहला देख, ये क्या है, आगे जाके एक से अटैच है तो ये प्राइमरी है, ये भी एक से अटैच है तो प्राइमरी है, और ये भी एक से अटैच है तो क्या है, बोल? प्राइमरी। और ये वाला कितने से अटैच है? एक, दो और तीन से। तो प्राइमरी वाला तो एक ही हाँ है ना सर। बेटा, यहाँ पे जाता था। तो देख यहाँ पे गया तो देखिए प्राइमरी बना के नहीं, बोल बेटा? लेकिन अगर ये हाँ यहाँ पे सर। जाता तो क्या बनता था? टर्शरी। देख ना, तीन से अटैच हुआ कि नहीं, तो ये मेजर बनेगा। वाई? बिकॉज टर्शरी इज मोर स्टेबल। रे, आर यू गेटिंग इट और नॉट? Yes. ये अनदर क्लास ना बेटा, दिस इज द लास्ट एग्जांपल आई एम डूइंग। बेटा इफ आई टेक नियोपेंटेन, रिया बेटा, नियोपेंटेन, तो नियो में तो बेटा इस पे कैन क्लोरीन अटैक ऑन दिस? नो ना, इसका ऑलरेडी चार बॉन्ड है ना बेटा, नॉट पॉसिबल। So chlorine, where it will attack beta? Either here, here, here or here. But all these are primary only beta. Isn't it beta? Tell me. तो कहाँ पे भी अटैक करेगा Yes, तो sir. एक ही प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं? अच्छा, एग्जाम में बेटा इस पे एक क्वेश्चन आएगा बेटा, क्या पूछेगा? नेम एन अल्केन विच कैन गिव ओनली वन क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट, मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट। तो हु इज दैट अल्केन बेटा? लुक, आई हैव रिटन आल्सो वन मोनो। यहाँ पे तू क्लोरीन डालती तो इधर ही क्लोरीन जाता, इधर इधर या इधर, लेकिन वो सब एक ही होता था कि नहीं? तो एन पेंटाइल क्लोराइड you will get. So which is that alkane which gives only one product? Neopentane. ब्रांच वाला ऐसा कौन सा ब्रांच वाला? वरना आप बोले सर मीथेन लेके तो नहीं, मीथेन में भी मल्टीपल प्रोडक्ट बनते थे। तो व्हाट विल बी द आंसर? नियोपेंटेन कैन फॉर्म ओनली वन क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट, ओनली वन क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट। ओके रेया, इफ आई टेक ब्रोमीन देन व्हाट विल हैपन? टेल मी। ए रेया, क्लोरीन की जगह पे अभी मैंने ब्रोमीन लिया तो क्या हो जाएगा बेटा? आरबीआर बनेगा कि नहीं? देख बेटा। Yes, sir. तो अभी ये मैकेनिज्म क्या होता है बाद में बताऊंगा, पहले खाली तू ये देख ले बेटा। सपोज इफ आई टेक इथेन, so what I'll get? Ethyl bromide. If I take cyclohexane, then what I'll get? Cyclohexyl bromide. Again बेटा, here if you see this mechanism I'll not explain today. अच्छा बेटा, अगर ये मैंने लिया रे, अब बेटा टेल मी, प्रोपेन लिया है तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे ब्रोमीन जा सकता था, बोल बेटा? वन पे जा सकता था और किस पे? टू पे। तो ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी, विच वन विल बी मोर स्टेबल? Secondary. वेरी गुड, तो ये तेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सपोज इफ आई वुड हैव टेकन आइसोब्यूटेन, सॉरी ये ब्यूटेन लेता, ब्यूटेन खाली, तो कहाँ कहाँ पे ब्रोमीन जा सकता था? दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज व्हाट? सेकेंडरी। तो विच वन विल बी मोर स्टेबल? Secondary. वेरी गुड। इफ आई वुड हैव टेकन आइसोब्यूटेन, तो यहाँ पे कौन था? दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज टर्शरी, तो इधर पे जाता तो प्राइमरी बनता था, इधर पे टर्शरी, तो विच वन इज मोर स्टेबल? Tertiary. दिखाई दिया बेटा? ओके, ये मैकेनिज्म इसका मैं नहीं बता रहा। सिमिलरली हम लोग आयोडीनेशन, अच्छा अच्छा ये न्यू पेंटेन लेता तो कितनी बार ब्रोमीन ऐड हो सकता था? ओनली वंस ना बेटा?
right? Yes. Okay. So beta, Yes. I'm stopping here, beta. This mechanism I'll discuss in next class because we have class at 8, na beta? Okay? Yes, sir. Chalo then, bye bye. Thank you, sir. Bye. Bye.